Hello students, welcome to the fifth lecture of redox reaction. In this lecture we are going to find out or we are going to identify whether the given reaction is redox reaction or not. So identification of reaction, whether it is redox or not, and to find out oxidizing agent and reducing agent. Very important question. नीट 2018 में इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था. Let us take some examples. The first one is H2S plus HNO3 gives S plus NO. Now you are given this reaction, we have to identify whether this given reaction is redox reaction or not. If it is a redox reaction, then identify oxidizing and reducing agent. Okay? So we are going to use those 8 rules which we have studied in the previous lectures. If I talk about this hydrogen is plus 1. Correct? Now this sulfur, if I calculate it by X method, it is going to be minus 2. It's minus 2. Next, if I go for this hydrogen, this is plus 1. ऑक्सीजन का रूल पता है हमको, it is minus 2. तो अगर हम लोग X मेथड से कैलकुलेट करें तो दिस नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी प्लस 5. ठीक है, अगर आपको ओरली कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है तो आप X मेथड से सॉल्व करिए. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सो दिस इज मोनोएटॉमिक and this is uncombined elemental state, so it is 0. Oxygen is going to be minus 2 and this nitrogen because of this oxygen will be plus 2. So अगर आपने हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया है, अगेन आई एम सेइंग अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप X मेथड से कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है, ओके. अगर आप इस सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर इज चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम -2 to 0. सो अगर आपको नंबर लाइन याद है, ठीक है, so this is going to be 0 plus 1 plus 2. This is -1 minus 2. Left to right is oxidation and right to left is reduction. याद है ना सबको? चलो तो आप बताओ, -2 से 0, -2 से 0, is it oxidation or reduction? It is oxidation. So H2S undergoes oxidation, therefore it is a dash agent, reducing agent, right? Now if I talk about this nitrogen, HNO3 में जो नाइट्रोजन है वो +5 है, यहाँ पे बेटा चेंज होके +2 हो गया. So when it changes from +5 to +2, +5 somewhere over here, +2 मतलब it is undergoing reduction. So अगर इसका reduction हो रहा है, so therefore it is a dash agent, it is an oxidizing agent. So this reaction is a redox reaction because इसमें oxidation भी हो रहा है और reduction भी हो रहा है. So this is an example of redox reaction wherein H2S is the reducing agent and HNO3 is an oxidizing agent. It is very simple. We'll solve one more question. Number 2. H2O2 plus Ki gives I2 plus H2O. ठीक है? Now listen. If we talk about this example, hydrogen is always, when it is combined with more electronegativity, is always +1. Here also it is hydrogen is +1. यहाँ पे oxygen is -2, but this is hydrogen peroxide student. Now peroxide में मुझे पता है oxygen is -1. यहाँ पे अगर आप आयोडीन की बात करो, the reaction is not balanced. हमको वैसे भी ज़रूरत है भी नहीं यहाँ पे बैलेंस की. यहाँ पे आयोडीन is -1 because potassium is +1. यहाँ पे आयोडीन बेटा एलिमेंटल स्टेट में इट इज 0. तो अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे -1 से किस में कन्वर्ट हुआ है, -2 में. सो -1 से -2 इट इज रिडक्शन. सो अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इफ आई टॉक अबाउट आयोडाइड, इट इज -1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, -1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है. सो इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. यस, इट इज ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा. ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों. मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, KMnO4 लिखिए प्लस H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड गिव्स MnO प्लस CO2. पहले आप लोग सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए एंड देन उसमें फिर आप फाइंड आउट करिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, और उसके बाद आप आइडेंटिफाई करिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. फोर्थ एग्जांपल, K2Cr2O7 plus HBr gives
Br2 plus Cr2O3, Cr2O3, right? One more example, fifth one, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. ठीक है, आप वीडियो पॉज करके 5 मिनट लीजिए, आराम से सॉल्व करिए, ठीक है। ओके ना सुनो, आई थिंक ये तो सबको आ चुका रहेगा। अगर आप बात करें, मैं सबका तो नहीं लिख रहा हूँ, आपको आंसर्स बता रहा हूँ। Mn यहाँ पे +7 था, यहाँ पे +2 हुआ है, इसका मतलब Mn का क्या हुआ है बच्चों, रिडक्शन हुआ है। और अगर ये रिडक्शन हुआ है तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस कार्बन की, तो यहाँ पे कार्बन इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ पे ओरली सॉल्व करें तो 4 टू -8 हो जाएगा, -8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, सो इट इज डिवाइड बाय 2, सो 3, सो +3 से +4 में जा रहा है, मतलब इट इज ऑक्सीडेशन। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सेम में इन द केस ऑफ K2Cr2O7, क्रोमियम का पता है सबको +6 होता है, यहाँ पे इट इज इन +3, ठीक है। तो +6 से +3 का मतलब खुद का क्या किया इसने, रिडक्शन किया। और अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। Br यहाँ पे -1 था, Br2 मतलब एलिमेंटल स्टेट 0 हो गया, -1 से 0 इट इज ऑक्सीडेशन। और अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी अगर आप इस रिएक्शन को देखते हो तो यहाँ पे Na+1 है, यहाँ पे भी Na+1 है, तो Na का तो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे H क्या है, +1 है, यहाँ पे भी H+1 है, इधर भी +1 है, तो H का भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे Cl किस फॉर्म में है, -1 के फॉर्म में, यहाँ पे भी Cl -1 के फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में, -2 के फॉर्म में, यहाँ पे भी -2 के फॉर्म में। इसका मतलब दिस इज नॉट अ redox reaction. If it is not a redox reaction, there is no question of oxidizing and reducing agent. So ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है, बट फिर भी नीट 2018 में आपको 4 रिएक्शन दिए हुए थे और उसमें सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना था कि इसमें से ऑक्सीडेशन, सॉरी किसका कौन सा वाला रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर है बेटा। अभी हम लोग मेन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि रेडॉक्स में सिंपल क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, अब देखिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ H2S, 1 mole of H2S loses 8 moles of electrons. 8 moles of electron. 1 mole of H2S loses 8 moles of electron. Determine oxidation number of sulfur and write oxidation half reaction. This is your question number 1. Now students, 1 mole of H2S, if I talk about H2S, हाइड्रोजन की स्टेट में +1 में, तो +1 में तो वो तो इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं सकता। तो सल्फर किस में है, -2 में, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। हाइड्रोजन तो +1 मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं ना, तो लूज क्या करेगा, इट लूजेस 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज किए, 8, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अभी मुझे ये बताओ यहाँ पे नंबर क्या आएगा, यहाँ पे नंबर क्या आएगा, वही तो उन्होंने पूछा है, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। अगर यहाँ पे -2 है तो -1 जब होता, ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, तो आपको इस साइड में जाना है, राइट। ध्यान से सुना, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। -1 से जब 0 जाता तो 1 से चेंज हुआ, फिर ऐसे करते तो +1 में, 2 से, +2 में, 3 से, ऐसे करके चेंज हुआ है। तो जस्ट इमेजिन करो टोटल चेंज कितने से लाना है, 8 से लाना है, तो इधर कितना नंबर होना चाहिए, थिंक यस इट इज +6 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू हैव ऑपोजिट साइन है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, सिंपली ऐड द नंबर्स। यहाँ पे 6 + 2 कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। सो व्हाट इज द न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, इट इज +6। न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6 एंड राइट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन और एग्जाम में ऐसे आते भी हैं। लेट अस सॉल्व मोर क्वेश्चंस। नंबर 2, now see, 1 mole of N2H4
loses 10 moles of electrons. 10 moles of electrons. Loses 10 moles of electron. Determine oxidation number of nitrogen and write loses बोला है मतलब oxidation half reaction. Correct? ना ध्यान से सुनो. क्वेश्चन में क्या बोला है? हाइड्रोजन तो बेटा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, वापस आप सोच सकते हो क्योंकि हाइड्रोजन तो पहले से +1 है, तो यहाँ पे लूज कौन करने वाला है? नाइट्रोजन. तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसमें. सो इट इज गोइंग टू बी बाय x मेथड 2x प्लस हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी +1 फोन कॉल के हिसाब से इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट इज गोइंग टू बी -2. सो इसका जो एक मोल है, ध्यान से सुना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. 1 mole of N2H4 loses how many electron? 10 moles of electrons, right? तो आप बताओ, दो नाइट्रोजन ने मिलके 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, दो जन ने मिलके ना, यहाँ पे देखो ना N2 है ना, तो दो जन ने मिलके 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो एक नाइट्रोजन ने कितना लूज किया रहेगा? एक नाइट्रोजन ने बेटा आप बता सकते हो 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे. अगर दो ने मिलके 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो एक ने कितना किया होता? 5. तो कैसे? अभी देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का इनिशियली ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? -2. करेक्ट. इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स. सो जो नया ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होना चाहिए? थिंक ऑन इट. -2 है, उसको टोटल 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने. सो दिस इज 1 2 3 4, और अगर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो ये 5. तो नया वाला ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5 + 3 हो जाएगा. तो आप अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते थे, दोनों का साइन हटा दो, दोनों ऑपोजिट साइन है तो सिंपली ऐड करोगे. 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5. सो इसका मतलब इसका नया ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5. एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ना डोंट गेट कंफ्यूज कि सर 10 दिया था आपने 5 ही क्यों लिखा, बिकॉज वो 10 बेटा कितने के लिए था? 2 n के लिए था. तो आपको तो क्वेश्चन में एक n का निकालना है, तो एक n के हिसाब से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करना. 2 moles of KMnO4 2 moles of KMnO4 gains 10 moles of electrons. 10 moles of electrons. Determine, same question, new oxidation number of Mn and also write the oxidation half reaction. ना ध्यान से सुनो, हमेशा याद रखो एक मोल के लिए निकालो और एक एटम के लिए निकालो. 2 moles of KMnO4 loses how many electrons? 10 moles of electron, right? 2 moles of KMnO4 loses gains gains 10 moles of electron. तो अगर 2 moles का 10 है तो 1 mole of KMnO4 का कितना होगा स्टूडेंट्स? 1 mole of KMnO4 will gain how many moles of electron? 5 moles of electron. अभी Mn हमने पहले भी निकाला था, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7 है. तो अगर Mn यहाँ पे +7 है, अगर वो 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो Mn किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 7 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +2 में. सो व्हाट इज द न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn? इट इज गोइंग टू बी +2 एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन, नहीं, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन. दिस इज RHR, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. सो हमने इस टाइप के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 3 किए. एक और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए, क्वेश्चन सेज 5 moles of K2Cr2O7 gains 30 moles of electrons. 30 moles of electrons. Determine same new oxidation number. Determine oxidation number and also write the reduction half reaction. मैंने आपको जस्ट थोड़े टाइम पहले बोला ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 1 मोल का निकालो. तो 5 मोल्स के लिए कितना है? 30 है. सो 1 मोल ऑफ K2Cr2O7. So 1 mole of K2Cr2O7 will corresponds to how many moles of electrons? 6 moles of electron. Correct? अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्रोमियम किस में है? +6 में है. करेक्ट है. और वो क्रोमियम भी कितने हैं? 2 है. तो 2 क्रोमियम के लिए 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्रोमियम के लिए कितना होगा? यस, इट इज 3. सो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
+3 में। सर वहाँ पे तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं था, बिकॉज बेटा यहाँ पे Mn कितना था, एक ही था, तो जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला वो Mn ही करने वाला है। और यहाँ पे क्रोमियम कितना है, कितना है, 2 है, तो 2 क्रोमियम है, तो 2 मिलके बेटा 6 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करे तो एक क्रोमियम कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3। सो Cr+6 से Cr इसमें कन्वर्ट हो जाएगा +3 में। सो व्हाट इज द न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, इट इज +3 and this is the reduction half reaction. So basically in this lecture we have studied how to identify the given reaction, whether it is a redox reaction or not, to find out oxidizing and reducing agent, and also some important questions जिसमें आपको नए एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू क्लास।